Assalamu alaikum students. So today we are going to cover another very important topic in international finance, but before going to that, first let's review the previous lecture. First of all, we discussed about the dollarization concepts, and we also gave the example for Ecuador, that what is the concept of dollarization. It is like when some country's currency devalues to certain extent, when it is, say for example, in case of Ecuador, the currency of Ecuador was devalued to 97% against dollar. That means the value itself, the value of Ecuador currency was so declined, it was impossible for the Ecuador economy to move with the same currency, because it was depreciated to an extent where it was really difficult for Ecuador economy to move with the same pace by using the same currency. So when it was declined or depreciated at 97% against dollar, so the decision by the policymakers in Ecuador was that they had to replace their currency with dollar. Then they decided to move on with dollar, and they adopted dollar as their currency. Single European currency, as discussed earlier, that single European currency was the main objective to introduce single European currency was to have a single currency or a standardized currency, because they wanted to adopt one single currency in all over the Europe, for which European Union, which was formed to join together all the European countries. When European countries came to one platform, they decided they will move on with the same pace. What was the objective? Because they wanted to introduce, or they wanted to have less barriers in trade and international business. So to facilitate international business and international trade among European countries, they decided to join a union, and they formed a European Union where all the European countries had to join. Then there were 12 countries who joined European economies, who joined European Union in a way. They also accepted that they will use euros as a single currency, and they replaced their own currencies with euros. Few of the countries just were reluctant to adopt euro as their basic currencies, like for example United Kingdom. They are moving with their own currency. However, there are 12 major economies in Europe who have adopted single currency, which is called euro. What was the objective? One thing, because they wanted to facilitate their international business. And whenever we are dealing, or when we are talking about international business, then we are saying that we cannot ignore the fact that international business is linked with financial transaction, because you have to pay for your imports and you have to receive money for your exports. In that case, foreign exchange is involved. In case of European countries, if they are adopting one single currency, so what will be the result? Obviously, for all those countries who have single euro as their basic currency, what they will do is that they will adopt euro as their currency, and what they will do is, when they are doing their business, they will basically doing the transactions in terms of euro. So what will be the benefit for those countries who have euros as their mode of exchange or as their mode of money? Obviously, every country would pay in terms of euro, they will receive in terms of euro, so there is no chance of exchange rate fluctuations. That was the main objective, to introduce one single currency in Europe, because European region wanted to have a single currency which can basically facilitate all the European countries in international trade and international financial transactions. Now, what was the impact on monetary and fiscal policy? As discussed in our previous lecture in detail, that what are basically the fiscal and monetary policies are. Monetary policy is something in which the supply of money is controlled, and the main tool for supply of money is interest rates. To control money supply in an economy by using the interest rate is called your monetary policy, in which basically the policies are designed by the governments, but they are implemented through the central banks. तो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी तो बेसिकली वो है जिसमें आपकी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है बाय यूजिंग द टूल ऑफ इंटरेस्ट रेट, एंड ऑल्सो इन योर मॉनेटरी पॉलिसी आपके इन्फ्लेशन रेट को भी फोकस किया जाता है कि कितनी मनी सप्लाई इकोनॉमी में होगी, अकॉर्डिंग टू विच द इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल्ड, या इन्फ्लेशन को टूल बना के आप फोकस करते हैं कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई कितनी रिक्वायर्ड है.
सो मनी मॉनेटरी पॉलिसी तो आपकी डील करती है मनी सप्लाई को along with your interest rate, while when we are talking about the fiscal policy, so we discussed that fiscal policy is something where you are discussing the government expenditures, and along with government expenditure we are also talking about that how much government is generating revenues. If government expenditures are more than government revenues, that means the government is in terms of deficit. क्योंकि अगर गवर्नमेंट की रेवेन्यू कम है और गवर्नमेंट की एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, व्हाट विल हैपन इन दैट केस, गवर्नमेंट डेफिसिट फेस कर रही है. इन केस ऑफ सिंगल यूरोपियन कंट्रीज, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव टू डिस्कस मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, बिकॉज इट इज सजेस्टेड बाय द यूरोपियन यूनियन कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो मनी सप्लाई है, दैट कैन बी स्टैंडर्डाइज्ड इन टर्म्स ऑफ ऑल दोज कंट्री हु हैव अडॉप्टेड यूरो एज देयर सिंगल करेंसी. क्योंकि मनी सप्लाई या इंटरेस्ट रेट तो स्टैंडर्डाइज हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं तमाम कंट्रीज के जिनकी बेसिक करेंसी यूरो है एज मोड ऑफ एक्सचेंज, वो यूरो को ही यूज कर रहे हैं विद इन देयर कंट्री एंड विद इन आउटसाइड द कंट्री व्हेन दे आर डूइंग द इंटरनेशनल बिजनेस विद एनी अदर यूरोपियन कंट्री. तो मनी सप्लाई इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट तो सेम हो जाएगी. बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द फिस्कल पॉलिसी, जिसमें आपके गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स और गवर्नमेंट की रेवेन्यूज आ जाते हैं, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर ऑल द कंट्रीज टू अडॉप्ट सेम फिस्कल पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑफ यूरो, कि हर कंट्री की कलेक्शन भी सेम हो और हर कंट्री की स्पेंडिंग गवर्नमेंट की सेम हो. व्हाई? बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देयर आर सम कंट्रीज हु आर लैकिंग इन टर्म्स ऑफ देयर एजुकेशन सेक्टर, while there are some other countries who are focusing more on infrastructure. The third group of countries may be focusing on the health sector. In that case, obviously जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स होंगी या गवर्नमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे for their fiscal policy, they would be quite different, because वो इकोनॉमीज जिनमें एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ सेक्टर होने हैं, तो गवर्नमेंट्स जो हैं वो ज्यादा फोकस अपने हेल्थ सेक्टर को करेंगी, एंड अकॉर्डिंग टू दैट बजट वुड बी क्वाइट डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी कंट्री. सो अगर तो आप यूरो को एज अ सिंगल करेंसी अपने माइंड में ले रहे हैं, तो मॉनेटरी पॉलिसी तक तो एक चीज माइंड में आती है कि ओके फाइन, मॉनेटरी पॉलिसी इज समथिंग वेयर द कंट्रीज कैन अडॉप्ट वन सिंगल करेंसी एंड दे कैन हैव वन सिंगल पॉलिसी फॉर द सप्लाई ऑफ मनी इन ऑल यूरोपियन कंट्रीज वेयर यूरो इज द बेसिक करेंसी. प्लस इंटरेस्ट रेट भी स्टैंडर्डाइज्ड हो सकते हैं थ्रू स्टेट बैंक या थ्रू सेंट्रल बैंक जो है उन कंट्रीज के, दे कैन डिफाइन कि ये हमारा स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट है विच ऑल द यूरोपियन कंट्रीज शुड अडॉप्ट. इन्फ्लेशन को भी टारगेट किया जा सकता है क्योंकि आपके मनी सप्लाई को टारगेट किया जा रहा है, मनी सप्लाई से रिलेटेड आपके सेम ऑब्जेक्टिव्स हैं. हाउएवर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द फिस्कल पॉलिसी, तो हर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कैन बी डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट कि किस इकोनॉमी में किस सेक्टर की ज्यादा रिक्वायरमेंट है जिसमें फंड्स को जाना चाहिए. प्लस टैक्सेस कलेक्शन जो है, जो आपके रेवेन्यू की कलेक्शन होती है ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सेस, दैट कैन बी डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एजेंडाज बाय डिफरेंट गवर्नमेंट्स, कि वो कैसे टैक्स नेट्स अपने जनरेट करते हैं, किस तरह से टैक्स को कलेक्ट करते हैं, किन सेक्टर्स से जाके टैक्स की कलेक्शन कर रहे हैं, डिपेंड्स. सो ऑब्वियसली फिस्कल पॉलिसी वाज समथिंग वेयर यूरोपियन यूनियन डिसाइडेड कि इट इज समथिंग वेयर इंडिविजुअल कंट्रीज हैव देयर ओन फिस्कल पॉलिसीज, बट व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी, सो दैट इज समथिंग व्हिच कैन बी स्टैंडर्डाइज्ड. Then we discussed what can be the impact of single European currency on international trade. So international trade is something where we can focus, okay, because you are going for imports and exports. तो अगर सिंगल यूरोपियन करेंसी होगी, सो व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट ओवर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स. सो दिस इज क्वाइट नॉर्मल कि आपको पता होना चाहिए जब आप इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, जब आप इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं, इन दैट केस ऑब्वियसली आपका जो ट्रेड है दैट इज इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑल्सो, क्योंकि आप इंपोर्ट्स करेंगे या एक्सपोर्ट्स करेंगे, आपको पेमेंट्स लेने की और पेमेंट्स देने की रिक्वायरमेंट है. इन दैट केस एक्सचेंज रेट इज इन्वॉल्व्ड. सो अगर तो आप किसी ऐसी करेंसी में डील करें जो कि आपकी करेंसी नहीं है, इन दैट केस ऑब्वियसली एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस को आपने माइंड में रखना है, एंड यू हैव टू फोकस ऑन द स्ट्रेटजीज बाय विच यू कैन अवॉइड एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस. हाउएवर इफ यू आर फोकसिंग on a single European currency, so what will be the agenda? In that case, single European currency would be adopted, so international trade will be facilitated to a higher extent within those European countries because they are using the same currency. Now, for example, multinational company who is involved in imports and exports, they are quite relaxed because they know कि हमने इतनी पेमेंट करनी है by the end of this term.
There is no exchange rate fluctuation. There will be a single currency involved in it, so they know it कि इतने यूरोस हमने पे करने हैं, इतने यूरोस हमने रिसीव करने हैं, कोई करेंसी फ्लक्चुएशन नहीं है, कोई एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन आने का चांस नहीं है, आपको कोई ऐसी पोजीशन मार्केट में लेने की जरूरत नहीं है जैसे आप फॉर एग्जांपल कॉल ऑप्शन पे जाते हैं, पुट ऑप्शन पे जाते हैं, जस्ट टू अवॉइड द करेंसी रेट फ्लक्चुएशंस. यू जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट एंड जस्ट मूव ऑन विद योर नॉर्मल बिजनेस बाय यूजिंग द सेम करेंसी. तो इंटरनेशनल ट्रेड पे सिंगल करेंसी का जो ऑब्जेक्टिव है या सिंगल करेंसी के इंप्लीमेंट होने से ऑब्वियसली इंटरनेशनल ट्रेड पे एक बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आया इन टर्म्स ऑफ दोज यूरोपियन कंट्रीज हु हैव अडॉप्टेड यूरो एज देयर कॉमन करेंसी. सो इंटरनेशनल ट्रेड तो बूस्ट हो गया बाय यूजिंग द सेम करेंसी. Then we discussed the international flows since we said कि आपको करेंसी imports और exports के लिए international flows की requirement होती है. एक चीज तो ये है कि जो आप imports की payments कर रहे हैं और exports की payment receive कर रहे हैं वो same euros में होंगी, तो obviously it is a positive point. On the other hand, when you consider international flows in terms of कि अभी हमने बात की merchandising trade की, जो imports exports की हम बात कर रहे थे, that was in terms of goods and services. However, when you are talking about the international flows, so that is something you can consider कि जी अगर आपने financial transactions की हैं या फिर आपने financial assets में transactions की हैं, what will happen in that case if you are using euros as a common currency? So in that case, obviously, if you are having a single common currency, everything is determined in terms of euros. So it will be quite easy for the people to consider या for the investors to consider कि आपने किस में investment करनी है, किन stocks में, किन bonds में investment करनी है, because returns और जितने भी आपके denominations हैं, सब के सब आपके euros में defined होंगे. So you can compare different stocks, different securities, different bonds because you know it कि आपकी payments जो हैं वो euros में जानी है. So in that case, euro has facilitated not only the trade in terms of goods and services, but also in terms of your financial assets. Because जब euros में हर चीज defined होगी, prices euros में mention होंगी, quotations euro में आएंगी, so it's quite easy for the investor to match and to consider to compare rather than converting them back into dollars and then comparing कि किस financial assets में investment करनी चाहिए या किस में नहीं करनी चाहिए. सो अगर तो आपके पास यूरो एक्सेप्ट हो रहा है या वो 12 इकोनॉमीज जो कि यूरोस को फोकस कर रही हैं, इन 12 इकोनॉमीज के तो जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर क्वाइट क्लियर, या फिर इवन बाहर से भी जो इन्वेस्टर आ रहा है जब उन 12 इकोनॉमीज के स्टॉक्स को फोकस करेंगे दे विल नो द क्लियर डिफरेंस. ओके फाइन, ये वो 12 इकोनॉमीज हैं जिनमें यूरो एज अ करेंसी यूज हो रहा है और ये वो डिनोमिनेशन है जिनमें इनके स्टॉक्स और बॉन्ड्स डिनोमिनेटेड हैं. So it's quite easy if I am an investor and I'm going to invest. So it's quite easy for me to compare those 12 economies because everything is quoted in terms of euros. Exchange rate risk पे क्या impact आया, which is the final point in these when you are considering the single European currency. Obviously there is a positive response from the investors because now they don't have to focus on exchange rate risk. They are considering कि अगर exchange rate आ रहा है और exchange rate movement नहीं है, exchange rate fluctuation नहीं है, so what will be the criteria? Obviously what they're gonna do is they will adopt the single currency और exchange rate risk को तो focus करने की जरूरत ही नहीं है अगर आप उन्हीं 12 इकोनॉमीज में बिजनेस कर रहे हैं जिनमें यूरोज इन्वॉल्व हो रहा है. However, if you are going abroad for another currency जहाँ पे कोई और करेंसी इन्वॉल्व हो रही है, in that case you have to focus on exchange rate risk also. So आपको जब आपके पास सिंगल यूरोपियन करेंसी आ गई तो वो इकोनॉमीज जिन्होंने यूरो को एज अ करेंसी एक्सेप्ट कर लिया उनको मॉनेटरी पॉलिसी सेम रखनी है और फिस्कल पॉलिसी कैन बी डिफरेंट ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ योर ओन इकोनॉमी. इंटरनेशनल ट्रेड में इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पे फोकस ऑब्वियसली बाय हैविंग द सिंगल करेंसी ये होगा कि इन्वेस्टर्स आर मोर हैप्पी टू इन्वेस्ट इन दोज कंट्रीज वेयर दे आर यूजिंग द सेम करेंसीज. इंटरनेशनल फ्लोज इफ यू आर डूइंग इन फॉर एग्जांपल अगर आप बात कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टॉक्स की या फिर इंटरनेशनल बॉन्ड्स की, इफ ऑल आर कोटेड इन टर्म्स ऑफ यूरोज, सो इट्स क्वाइट कन्वीनियंट एटलीस्ट फॉर मी इफ आई एम एन इन्वेस्टर कि मैं कंपेयर कर सकूं कि किस बॉन्ड में या किस स्टॉक में मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है. And finally, if you are focusing on exchange rate risk, so then if you are focusing on a single currency, so it's quite evident कि आपको फिर exchange rate risk पे focus करने की जरूरत नहीं है because you are focusing on some single currency. Then we discussed the government intervention because we discussed, say for example, अगर आप international business कर रहे हैं या international trade कर रहे हैं, in that case government intervention is required because of the policy agenda. और अगर किसी country की imports बहुत ज़्यादा हो रही हैं than their exports, what will be the policy for the government? Obviously they have to stop that pressure of imports by using different tools and techniques because they want to reduce that pressure which has been built up because of the huge imports.
So government intervention will be discussed in detail today, that how that government can involve themselves in different types of policy, or how they can basically focus on central bank's policy, that they can give policy suggestions to central bank, because that is the authority who is going to implement different types of strategies in terms of government's policy. So let's just move on to the lecture, where we have to discuss that what can be the objective of government intervention. And so finally we will be discussing the government influence on exchange rates, and then we will move on to another topic, which is arbitrage, and we will discuss it in detail later in this lecture. So government intervention. Direct intervention refers to the exchange of currencies that the central bank holds as reserve for other currencies in foreign exchange market. So in that case it will be called a direct intervention when this type of exchange rate reserves are maintained. Direct intervention is usually most effective when there is a coordinated effort among central banks. So अगर तो central banks में coordinated effort होगा, they know how much foreign reserves they have, and as it says that the central bank holds reserves for other currencies in foreign exchange market, in that case it is called direct intervention. और वो सारी economies जिसमें direct intervention होती है वो ज़्यादा effective वहाँ पे है जहाँ पर coordinated effort है among central banks. तो central banks आपस में भी coordinate कर रहे हैं in terms of foreign exchange reserves के कितने आपके पास foreign exchange reserves हैं और उनको किस तरह से intervene करके utilize करना है. When the central bank have high levels of reserve, what they can use it for? First of all, to force the dollar to depreciate, the Fed, when we are talking about Fed, जहाँ पे भी Fed का word आएगा, so it is the Central Bank of America. And why we are discussing the Central Bank of America? Because sometimes it is considered that, and usually it is considered कि जी Central Bank of America या फिर American economy को हम लोग benchmark के तौर पे लेते हैं. So in that case basically जब आप Fed की बात कर रहे हैं तो हम एक benchmark system की बात कर रहे हैं और उसी को consider करते हुए, focus करते हुए, you will be moving on towards your own criteria के जनरल पॉलिसीज क्या हो सकती हैं. टू फोर्स द डॉलर टू डेप्रिशिएट, लाइक अगर डॉलर बहुत ज्यादा एप्रिशिएट हुआ है उसको डेप्रिशिएट करने के लिए जो सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका है विच इज द फेड कैन इंटरवीन डायरेक्टली by exchanging dollars that it holds as reserves for other foreign currencies in the foreign exchange market. तो अगर तो आपके पास फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें कि अगर अमेरिकन इकोनॉमी में डॉलर बहुत ज्यादा एप्रिशिएट हो गया है, जो कि हमने पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया है कि जब आपकी करेंसी बहुत ज्यादा एप्रिशिएट हो जाती है इट हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ओवर योर एक्सपोर्ट्स. तो आपके एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं. इन दैट केस आपके कंट्री में बेसिकली जो डिमांड्स आ रही हैं एक्सपोर्ट्स की वो रिड्यूस हो जाती हैं विच हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट अगेन. तो अगर तो आपके अमेरिकन इकोनॉमी में ये हो रहा है कि डॉलर बहुत ज्यादा अप्रिशिएट हो गया ड्यू टू इट्स हायर डिमांड, व्हाट विल हैपन, आपकी जो अमेरिकन इकोनॉमी की डिमांड्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी बिकॉज एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव होना शुरू हो जाएंगी. इन दैट केस पीपल वुड बी विलिंग टू गो फॉर अदर इकोनॉमीज. In that case, government intervention is required. क्योंकि आपकी फर्स्ट लाइन आप अगर इसकी रीड करें, टू फोर्स द डॉलर टू डिप्रिशिएट, क्योंकि डॉलर ऑलरेडी बहुत अप्रिशिएट हुआ है, अब अगर उसको डिप्रिशिएट करना है सो व्हाट कैन बी द डायरेक्ट इंटरवेंशन कि जो आपके सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका है या जो फेड है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका, उसके पास जो डॉलर के रिजर्व्स हैं उसमें से आप डॉलर्स को निकाल कर कन्वर्ट कर दें दूसरी करेंसीज में. What will happen? In that case, डॉलर की सप्लाई जो है वो मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी. जब डॉलर की सप्लाई मार्केट में इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू डिक्लाइन करेगी. जब उसकी वैल्यू डिक्लाइन करेगी तो वो उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगा जो आपके सेंट्रल बैंक को रिक्वायर्ड है, बिकॉज एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए आपको डॉलर को थोड़ा डिक्लाइन कराना है, थोड़ा डिप्रिशिएट करना है. सो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव इन दिस पॉइंट. By flooding the market with dollars, कि अगर फ्लड कर दें आप मार्केट में डॉलर्स को बहुत ज्यादा इंजेक्ट कर दें by exchanging them with other currencies, in this manner the Fed puts downward pressure on the dollar. तो बेसिकली सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका ने क्या किया, फेड जो है उन्होंने डाउनवर्ड प्रेशर दिया डॉलर के ऊपर बिकॉज उन्होंने डॉलर की सप्लाई मार्केट में इंक्रीज कर दी. If the Fed desires to strengthen the dollar,
अब अगर फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक इट अदर वे अराउंड के आपके डॉलर जो है बहुत ज्यादा वीक हुआ हुआ है मार्केट में, एंड फेड जो सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका है, द पॉलिसी और गवर्नमेंट इंटरवेंशन, हम डायरेक्ट इंटरवेंशन की जब बात करें तो बेसिकली मैंने आपसे पहले भी कहा कि जितनी फाइनेंशियल टाइप के डिसीजंस होते हैं दे आर बेसिकली डन थ्रू द सेंट्रल बैंक। तो जब हम बात कर रहे हैं फेड की तो ऑब्वियसली इट इज सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन तो है बट इट शुड बी अडॉप्टेड बाय यूजिंग द सेंट्रल बैंक ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो आप लास्ट पॉइंट को अगर फोकस करें, दैट इज इफ द फेड डिजायर टू स्ट्रेंथन द डॉलर, पहले फेड की रिक्वायरमेंट क्या थी कि आपने डॉलर को उसने वीक करना था। नाउ फेड वांट्स कि अगर फॉर एग्जांपल डॉलर बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट हो गया, नाउ इट हैज टू ब्रिंग इट बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पॉइंट, या इसको थोड़ा स्ट्रेंथन करने की रिक्वायरमेंट है। इट कैन एक्सचेंज फॉरेन करेंसीज फॉर डॉलर्स। तो अगर तो मार्केट में आप देखें कि डॉलर बहुत डिप्रिशिएट हुआ हुआ है तो आपके जो सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका है वो रादर देन कन्वर्टिंग डॉलर टू फॉरेन करेंसी, जो पिछली आपकी स्टेटमेंट थी उसमें किया था, अब वो क्या करेंगे कि फॉरेन करेंसीज को कन्वर्ट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। तो ऑब्वियसली डॉलर की डिमांड इंक्रीज कर देंगे इन मार्केट। जब डिमांड इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली डॉलर की वैल्यू भी इनहैंस हो जाएगी और डॉलर की वैल्यू इंप्रूव हो जाएगी। So if the Fed desires to strengthen the dollar, it can exchange foreign currencies for dollars in foreign exchange market, thereby putting an upward trend or upward pressure on the dollar. So mind में अपने ये रख लें कि अगर आपके कोई करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है या डिक्लाइन कर रही है, उसकी वैल्यू बिलो जा रही है उस पॉइंट से जहां पे उसकी रिक्वायर्ड कंडीशन है या रिक्वायर्ड उसकी जो वैल्यू है या इक्विलिब्रियम पॉइंट है, डिप्रिशिएट हो रही है उस पॉइंट से, तो जो सेंट्रल बैंक है उस इकोनॉमी का वो उस करेंसी की डिमांड इंक्रीज करेगा इनटू द मार्केट बाय सेलिंग अदर फॉरेन करेंसीज इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बाय विद डॉलर, या फिर उसी करेंसी के जो भी आपकी कंट्री की करेंसी है उसकी डिमांड इंक्रीज कर देगा। इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल वी आर कंसिडरिंग डॉलर, सो लेट्स टेक द एग्जांपल फॉर डॉलर कि अगर डॉलर डिक्लाइन कर रहा है इन इट्स वैल्यू, व्हाट विल हैपन कि जो आपके सेंट्रल बैंक है वो डॉलर की डिमांड एक्सचेंज मार्केट में इंक्रीज करेगा। और किस तरह से इंक्रीज करेंगे कि जो आपके पास फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स हैं सेंट्रल बैंक में, वो दूसरी करेंसीज को उठा के एक्सचेंज रेट में कन्वर्ट कर देगा एक्सचेंज मार्केट में, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में विद डॉलर्स। तो डॉलर की डिमांड इंक्रीज कर देगा। जब सेंट्रल बैंक डॉलर की डिमांड ज्यादा करेगा सो ऑब्वियसली डिमांड जब ज्यादा होगी तो प्राइस भी इंक्रीज करेगी। दैट मींस डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, डॉलर एप्रिशिएट हो जाएगा, स्ट्रेंथन हो जाएगा। सो इसी के अगेंस्ट आप दूसरी एग्जांपल लें कि फॉर एग्जांपल डॉलर की वैल्यू बहुत इंक्रीज हो रही है फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो उस केस में क्या होगा कि एक्सचेंज रेट मार्केट में आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका डॉलर सेल करेगा, डॉलर्स की सप्लाई बढ़ा देगा मार्केट में और उसको सेल कर देगा अगेंस्ट अदर करेंसीज और दूसरी करेंसीज को अपने स्टॉक में ले आएंगे। इससे क्या होगा कि मार्केट में डॉलर की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। जब सप्लाई इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली डॉलर की वैल्यू डिक्लाइन करेगी, तो जो डॉलर की स्ट्रेंथ थी वो रिड्यूस हो जाएगी और डॉलर की वैल्यू डिक्लाइन करेगी, जो कि आपके सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव है। सो डायरेक्ट इंटरवेंशन इज इन अ वे कि जब आपके फॉर एग्जांपल किसी करेंसी की वैल्यू अप्रिशिएट होती है या डेप्रिशिएट होती है तो सेंट्रल बैंक किस तरह से इंटरवीन करके बाय द यूजिंग द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट इंटरवीन करके डायरेक्ट इंटरवेंशन के थ्रू उस करेंसी की वैल्यू को इनहैंस करते हैं या डेप्रिशिएट करते हैं। Effects of direct central bank intervention in foreign exchange market. See, now let's see, आप इसकी एग्जांपल लें कि आपके x एक्सिस के ऊपर वैल्यू ऑफ पाउंड्स है और जो y एक्सिस है उसके ऊपर वैल्यू ऑफ पाउंड्स है और जो x एक्सिस है उस पे क्वांटिटी ऑफ पाउंड्स है। D1 आपकी अर्लियर डिमांड थी, डिमांड आपने अगर इंक्रीज की मार्केट में विच इज D2, तो डिमांड किसी भी करेंसी की इन टर्म्स ऑफ पाउंड्स हम बात करें, फॉर एग्जांपल अब पाउंड्स की एग्जांपल ले लें कि अगर आपने D1 से D2 पे कर दी पाउंड्स की डिमांड, दैट मींस पाउंड्स की डिमांड इंक्रीज कर दिया आपने, व्हाट विल बी द रिजल्ट? आप देखें जो आपका रेड कर्व है दैट इज D2, उसके रिजल्ट में वैल्यू ऑफ पाउंड भी इनहैंस हो गई है, इंक्रीज कर गई है। दैट मींस जो डायरेक्ट इंटरवेंशन है सेंट्रल बैंक की, अगर सेंट्रल बैंक ने पाउंड की वैल्यू को इंक्रीज करना है तो उन्होंने पाउंड की डिमांड इंक्रीज करनी है इन मार्केट। तो D1 से D2 पे जब डिमांड इंक्रीज हुई तो आपकी वैल्यू V1 से V2 पे चली गई।
सो ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि अगर किसी करेंसी की वैल्यू अप्रिशिएट करनी है, सो व्हाट विल बी द क्राइटेरिया कि उसकी वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए उसकी डिमांड को इंक्रीज कर देंगे. इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल पाउंड की डिमांड को इंक्रीज कर दिया फ्रॉम D1 टू D2. तो जब D2 पे आपकी डिमांड चली गई तो ऑब्वियसली डिमांड इंक्रीज हो गई. डिमांड इंक्रीज हुई, उसके अगेंस्ट आपकी वैल्यू ऑफ पाउंड भी इंक्रीज हो गई, विच इज V2 नाउ. दैट इज गॉन फ्रॉम V1 टू V2 हो गया. लेट्स सी अनदर एग्जांपल. आपने देखें दूसरे एग्जांपल में कि अगर फेड एक्सचेंजेस पाउंड्स फॉर डॉलर्स टू वीकन द पाउंड. अब आपने पाउंड की वैल्यू को रिड्यूस करना है. दैट मीन्स पिछली एग्जाम्पल में आपने पाउंड को अप्रिशिएट करना था, इस एग्जाम्पल में जो दूसरा ग्राफ है हमारा, इसमें आपने पाउंड को डिप्रिशिएट करना है. व्हाट विल बी द क्राइटेरिया? कंप्लीटली ऑपोजिट टू द फर्स्ट ग्राफ, बिकॉज नाउ यू वांट टू डिप्रिशिएट द करेंसी. इसमें क्या हुआ कि क्वांटिटी ऑफ पाउंड आपकी आ रही है एक्स एक्सिस पे और आपके पास वैल्यू ऑफ पाउंड आ रही है वाई एक्सिस पे. आपकी पहले वैल्यू थी V1 और पहला आपका सप्लाई कर्व था S1 जो आपके पाउंड्स में था. अब अगर आप पाउंड्स की सप्लाई बढ़ा देंगे इन मार्केट, सप्लाई इंक्रीज होने से वैल्यू डिक्रीज करेगी. सो आपने बेसिकली सप्लाई कर्व को मूव किया, पाउंड की सप्लाई मार्केट में इंक्रीज कर दी, जिससे आपकी वैल्यू V1 से V2 पे आ गई. अगर आपने वैल्यू एनहांस करनी है सो फोकस ऑन द फर्स्ट ग्राफ, विच मीन्स कि आपने डिमांड इंक्रीज करनी है. अगर आपने वैल्यू डिप्रिशिएट करनी है तो फोकस ऑन द सेकंड ग्राफ, दैट मीन्स आपने सप्लाई इंक्रीज करनी है. So that is called the direct intervention, and it is the effect of direct central bank intervention in foreign exchange market. That's how you basically see कि अगर central bank ने directly intervene करना है in foreign exchange market, so what will be the criteria? They have to basically either increase the demand or increase the supply in the market to appreciate or depreciate the currency. Now, reliance on reserves, what does that mean? The potential effectiveness of a central bank's direct intervention is the amount of reserves it can use. So, for example, the Central Bank of China has a substantial amount of reserves that it can use to intervene in foreign exchange market. तो आपकी जो डायरेक्ट इंटरवेंशन होती है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर रिलायंस ऑन द रिजर्व्स. तो अगर तो एक कंट्री के पास फॉरेन रिजर्व्स ही नहीं है, सो हाउ इट विल कंट्रोल or how it will intervene into the foreign exchange market to control the exchange rate volatility. या फिर किसी करेंसी की अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट कैसे करेंगे जब तक आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ही नहीं होंगे. क्योंकि अगर आपने फॉर एग्जांपल रुपी की वैल्यू को डिक्रीज करना है या डिप्रिशिएट करना है या अप्रिशिएट करना है, उसको ऑब्वियसली आपने एक्सचेंज करना है इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी. या तो आपने सप्लाई इंक्रीज करनी है या आपने डिमांड इंक्रीज करनी है इन टर्म्स ऑफ अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन. दैट विल बी पॉसिबल ओनली इन टर्म्स ऑफ कि अगर आपके पास सफिशिएंट रिजर्व्स अवेलेबल हैं. सो वो इकोनॉमीज जिनके पास सफिशिएंटली रिजर्व्स अवेलेबल हैं, दे आर क्वाइट good or quite fortunate in a sense because they can control by using the direct intervention into foreign exchange markets, because in that case they can control the demand and supply forces and they can use the demand and supply forces and they can bring the currency's value to its normal strength. So China की example is given in this case कि China has substantial amount of reserves that it can use to intervene in the foreign exchange market. तो अगर हम चाइना की बात कर रहे हैं तो चाइना के पास बहुत सफिशिएंट रिजर्व्स अवेलेबल हैं. सो चाइनीज करेंसी कैन बी टू अ प्लेस वेयर दे वांट टू बी, क्योंकि अगर उन्होंने उसको स्ट्रांग करना है या फिर इवन अगर किसी और करेंसी की वैल्यू उन्होंने डेप्रिशिएट या अप्रिशिएट करनी है, सो दे हैव देयर फॉरेन रिजर्व्स अवेलेबल. As foreign exchange activities has grown, central bank intervention has become less effective. तो जिस तरह आपके फॉर एग्जांपल हम अब देख रहे हैं आजकल में, जिस तरह हमने बात की कि पास्ट 30 इयर्स में इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस हैज बीन बूस्टेड अ लॉट. उसमें क्या है कि आपके इंटरनेशनल ट्रेड होने की वजह से ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा हो रही हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में. तो जितनी ज्यादा लिक्विड होगी मार्केट, जितना वी हैव डिस्कस्ड कि आपके मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा होगी, जितना इंटरनेशनल बिजनेस ज्यादा होगा, जितनी ट्रांजैक्शन ज्यादा होंगी, उतना ही वॉलेटिलिटी आने के चांसेस कम है. अब जब वॉलेटाइल नहीं होगी मार्केट, इन दैट केस ऑब्वियसली देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर द सेंट्रल बैंक टू इंटरवीन.
क्योंकि सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट तभी है जब आपकी करेंसी जो है बहुत फ्लक्चुएट कर रही है या फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट से डिविएट कर रही है. In this case, when foreign exchange activities has grown a lot in past 30 years और past 3 decades, तो उस केस में क्या होता है कि सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन जो है बहुत मिनिमल हो गई है, बिकॉज जितनी लिक्विड ट्रांजैक्शंस होंगी, जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही हैं इकोनॉमीज में, उतना सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन के चांसेस कम हैं. The volume of foreign exchange transactions on a single day now exceeds the combined value of reserve that at all central banks hold. तो बेसिकली अभी जितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो इतनी ज़्यादा हो रही हैं अमंग डिफरेंट इकोनॉमीज, फॉरेन ट्रांजैक्शंस इतनी ज़्यादा हैं कि जो कंट्रीज हैं उनके लिए क्वाइट उस तरह से पॉसिबल है कि वो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस के लिए इतना क्विकली मूव करें कि वो आपके रिजर्व्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती उसमें, क्योंकि ट्रांजैक्शंस का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है. Consequently, the number of direct interventions has declined. तो जितनी ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रही हैं उतना ही इन्वॉल्वमेंट कम होती जा रही है डायरेक्ट इंटरवेंशन की. सो बेसिकली आपके पास नंबर ऑफ डायरेक्ट इंटरवेंशन हैज डिक्लाइंड बिकॉज आपकी ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा हो रही हैं और उस केस में लिक्विडिटी मार्केट में बहुत ज्यादा है और डायरेक्ट इंटरवेंशन जो है वो डिक्लाइन कर गई है. फॉर एग्जाम्पल, इन 1989 the Fed intervened on 97 different days. तो एक 1989 में आउट ऑफ 360 डेज 97 टाइम्स 97 डेज पे जो सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका है उन्होंने इंटरवीन किया टू बेसिकली रेगुलेट द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, या उन्होंने अप्रिशिएट करना था या डेप्रिशिएट करना था करेंसी की वैल्यू को. हाउएवर द फेड हैज नॉट इंटरवीन्ड ऑन मोर देन 20 डेज इन एनी ईयर. अब जिस तरह से ट्रांजैक्शंस चल रही हैं, नॉट मोर देन 20 टाइम्स फेड हैज इंटरवीन्ड. सो इट कैन बी कंक्लूडेड कि जो पास्ट ट्रांजैक्शंस थी लास्ट 3 डेकेड से पहले जितनी ट्रांजैक्शंस हो रही थी तो काफी उसमें वॉलेटिलिटी आने के चांसेस थे, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड भी इतना ज्यादा नहीं था, इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी इतनी ज्यादा नहीं थी, फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन भी इतनी ज्यादा नहीं थी, ट्रेड ओपननेस इतनी ज्यादा नहीं थी. इन दैट केस ऑब्वियसली आपके जो फेड था या जो सेंट्रल बैंक से दे हैड इंटरवीन्ड अ लॉट. बट नाउ सिंस द ट्रांजैक्शंस, द इंटरनेशनल बिजनेस हैज बीन इम्प्रूव्ड अ लॉट और बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, सो इन दैट केस आपके फेड जो है इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि 20 टाइम्स या उससे भी लेस इंटरवीन करते हैं टू बेसिकली रेगुलेट द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. When a central bank intervenes in the foreign exchange market without adjusting for change in money supply, it is said to engage in non-sterilized intervention. तो जब तो सेंट्रल बैंक आपका इंटरवीन करता है विदाउट एडजस्टमेंट इन मनी सप्लाई इन द मार्केट, स्ट्रेट अवे डायरेक्टली इंटरवीन करता है, इट इज नॉन स्टेरिलाइज्ड इंटरवेंशन. In a sterilized intervention, the central bank simultaneously engages in offsetting transactions in the treasury securities market to maintain the money supply. तो बेसिकली अगर तो सेंट्रल बैंक डायरेक्टली इंटरवीन कर रहा है इनटू द मार्केट विदाउट यूजिंग एनी मनी सप्लाई इंस्ट्रूमेंट, सो दैट मीन्स इट इज नॉन स्टेरिलाइज्ड इंटरवेंशन. बिकॉज उस केस में सेंट्रल बैंक जो है स्ट्रेट अवे जंप कर रहा है इनटू द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड स्टेट बैंक और सेंट्रल बैंक इज ट्राइंग टू रेगुलेट द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट विदाउट यूजिंग मनी सप्लाई इंस्ट्रूमेंट्स. On the other hand, if State Bank is using any type of money supply instrument into the market and then it is intervening, so it will be called sterilized intervention. Because in this case the state bank is using the treasury bill securities जिसके थ्रू आपके मनी सप्लाई कंट्रोल या इंक्रीज की जा सकती है. अब आपके ट्रेजरी बिल्स क्या हैं जो कि ऑफर होते हैं थ्रू द गवर्नमेंट, तो अगर तो आपके स्टेट बैंक्स या सेंट्रल बैंक उन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके रेगुलेट कर रहे हैं मार्केट को या फिर इंटरवीन कर रहे हैं इनटू द मार्केट, देन इट इज स्टेरिलाइज्ड इंटरवेंशन. हाउएवर ऑन द अदर साइड, अगर सेंट्रल बैंक विदाउट यूजिंग एनी टूल फ्रॉम मनी सप्लाई इंटरवीन कर रहा है इनटू द मार्केट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, दैट मीन्स इट इज नॉन स्टेरिलाइज्ड इंटरवेंशन. तो ये दो कैटेगरीज हैं विच यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड कि स्टेरिलाइज्ड इंटरवेंशन क्या है और नॉन स्टेरिलाइज्ड इंटरवेंशन क्या है. स्टेरिलाइज्ड इंटरवेंशन ये है कि जब आपका स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक बाय यूजिंग एनी टूल ऑफ मनी सप्लाई कैन इंटरवीन इनटू द मार्केट, फॉर एग्जांपल ट्रेजरी बिल्स को यूज करके वो इंटरवीन करता है इनटू द मार्केट, देन इट इज कॉल्ड स्टेरिलाइज्ड इंटरवेंशन.
ऑन द अदर हैंड जब आपका स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता है इनटू द मार्केट बाय यूजिंग नन ऑफ द मनी सप्लाई इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल्ड नॉन स्टेरलाइज्ड इंटरवेंशन. Some speculators attempt to determine when the central bank is intervening directly and the extent to the intervention in order to capitalize on the anticipated results of the intervention effort. So speculators, as we have discussed this category in our previous lecture, sometimes they are trying to get some benefit out of these types of direct intervention by the central bank because they are trying to generate their own profits by using the non-sterilized intervention used by the central bank. The central bank can also engage in indirect intervention. अभी तक जब हमने बात की that was direct intervention. Now let's discuss the criteria where central banks can intervene by using the indirect intervention. So central banks can also engage in indirect intervention by influencing the factors that determine the value of the currency. That means inflation, interest rate, income level and government control or expectations. तो अगर तो आपके जो सेंट्रल बैंक्स हैं दे आर इंटरवीनिंग स्ट्रेट अवे इनटू द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, दैट इज डायरेक्ट इंटरवेंशन कि स्ट्रेट अवे किसी करेंसी को अप्रिशिएट करना है, डिप्रिशिएट करना है, मनी सप्लाई इंक्रीज कर दें, डिप्रिशिएट कर दें, डिक्लाइन कर दें सप्लाई ऑफ दैट करेंसी, दैट केस दैट इज द डायरेक्ट इंटरवेंशन ऑफ योर सेंट्रल बैंक. हाउएवर अगर आप इनडायरेक्ट इंटरवेंशन देखें सेंट्रल बैंक की, सो सेंट्रल बैंक कैन डिटरमिन द वैल्यू ऑफ अ करेंसी बाय यूजिंग द टूल्स ऑफ इन्फ्लेशन. इंटरेस्ट रेट को भी कंट्रोल कर सकता है ऑब्वियसली सेंट्रल बैंक, आपके इन्फ्लेशन को भी टारगेट करता है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. इनकम लेवल ऑब्वियसली कैन बी एन एजेंडा. गवर्नमेंट कंट्रोल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कि हमने कहा कि गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ के एजेंडाज पॉलिसीज डिजाइन कर देती है टू बूस्ट देयर इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. एंड एक्सपेक्टेशंस ऑल्सो समटाइम्स मैटर कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं ड्यू टू यूजिंग ऑल दीज टाइप्स ऑफ फैक्टर. सो दैट इज कॉल्ड योर इनडायरेक्ट इंटरवेंशन. तो अगर तो आप बात करें डायरेक्ट इंटरवेंशन की, फाइन स्टेट बैंक स्ट्रेट अवे जंपिंग इनटू द मार्केट एंड ट्राइंग टू कंट्रोल और रेगुलेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइटेरिया फॉर द वैल्यू ऑफ द करेंसी. हाउएवर इफ सेंट्रल बैंक इज नॉट जंपिंग इनटू द मार्केट स्ट्रेट अवे बाय यूजिंग द डायरेक्ट टूल, दे आर यूजिंग द इनडायरेक्ट टूल्स व्हिच आर योर इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट कंट्रोल, एक्सपेक्टेशंस एंड इनकम लेवल. दैट इज कॉल्ड योर इनडायरेक्ट इंटरवेंशन इन योर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. सो आपने जो डायरेक्ट क्राइटेरिया पढ़ा उसमें स्टेरलाइज्ड और नॉन स्टेरलाइज्ड इंटरवेंशन है. इनडायरेक्ट क्राइटेरिया दैट मींस कि दो कैटेगरीज हैं, या तो आपकी गवर्नमेंट डायरेक्टली इंटरवीन करती है या इनडायरेक्ट इंटरवेंशन है. प्लस जो अब आप डायरेक्ट इंटरवेंशन या इनडायरेक्ट इंटरवेंशन की बात करते हैं तो सेंट्रल बैंक्स इन्वॉल्व हैं कि या तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे या वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे. जब वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे तो उसमें फर्दर दो कैटेगरीज हैं. वन इज कॉल्ड योर स्टेरलाइज्ड इंटरवेंशन, द अदर वन इज कॉल्ड नॉन स्टेरलाइज्ड इंटरवेंशन. Let's take an example that, for example, Fed, again the Central Bank of America, may attempt to increase the interest rate and hence boost the dollar's value by reducing the US money supply. अभी तक हमने बात की थी कि फेड जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है बाय इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ द करेंसी या फिर सप्लाई ऑफ द करेंसी एंड देन दे आर कंट्रोलिंग द वैल्यू ऑफ द मनी. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ इंटरेस्ट रेट कि अगर आपको इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देता है, अगर आपको ये पता है कि सेंट्रल बैंक ने पॉलिसी बना दी है कि इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो गए हैं which are basically applied on your deposits in the banks, तो ऑब्वियसली क्या होगा, आप सेविंग्स इंक्रीज कर देंगे. आप अपनी सेविंग्स इंक्रीज करेंगे तो आप ऑब्वियसली अपनी जो मनी है या अपनी जो सेविंग्स हैं उनको ले जाएंगे बैंक्स में डिपॉजिट कर देंगे. बैंक्स में डिपॉजिट होने के बाद आपको बेनिफिट ये है कि आपको हाई इंटरेस्ट रेट मिलेगा. ऑन दी अदर हैंड सेंट्रल बैंक ने ये पॉलिसी क्यों फॉलो की, बिकॉज सेंट्रल बैंक क्या करना चाह रहा है कि बाय ऑफरिंग यू मोर इंटरेस्ट रेट दे आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट मोर मनी इनटू द बैंक्स, बिकॉज वो करेंसी को या मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दे आर ब्रिंगिंग बैक इनटू द बैंक, तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में रिड्यूस हो रही है. लेट्स रीड दिस अगेन एंड सी द सेम कॉन्सेप्ट इन अ वे. So let's read it again and consider this thing in the same scenario कि for example the Central Bank of America which is the Fed may attempt to increase interest rate कि Fed ने Central Bank of America ने policy बना ली कि वो offer कर रहे हैं higher interest rate because they are increasing interest rates on your
बैंक डिपॉजिट एंड हेंस बूस्ट द डॉलर्स वैल्यू. क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहे हैं. मोर एंड मोर डॉलर्स विल कम इनटू द बैंक. सो ऑब्वियसली जब आपकी ज्यादा इसमें आपके बैंक्स में मनी सप्लाई आएगी या फिर ज्यादा डॉलर्स आएंगे, दैट विल एनहांस द वैल्यू ऑफ द डॉलर. और दूसरे केस में आप ये देखें कि जब आपकी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहे हैं तो आप अपनी सेविंग्स लेके जा रहे हैं इनटू द बैंक्स, यू आर डिपॉजिटिंग देम इनटू द बैंक्स. व्हाट विल हैपन इन दैट केस कि आप बेसिकली रिड्यूस कर रहे हैं मनी सप्लाई इन यूनाइटेड स्टेट्स, बिकॉज आप सेविंग्स की फॉर्म में ज्यादा कलेक्ट करके उसको ले जा रहे हैं, बैंक्स में सेव कर रहे हैं, क्योंकि आपको बेनिफिट ये है कि आपको हायर इंटरेस्ट रेट्स मिलेंगे. ऑन दी अदर हैंड सेंट्रल बैंक का बेनिफिट ये है कि दे वांट टू रिड्यूस द मनी सप्लाई इनटू द इकोनॉमी. सो दैट कैन बी अनदर पॉलिसी बाय द स्टेट बैंक कि अगर उन्होंने मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है. सो इंटरेस्ट रेट कैन बी अनदर टूल बाय विच दे कैन हैंडल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ थ्रू स्टेट बैंक या थ्रू सेंट्रल बैंक आपके बाय यूजिंग द टूल ऑफ इंटरेस्ट रेट भी अप्लाई हो सकता है, बाय विच मनी सप्लाई कैन बी कंट्रोल्ड. Some governments have also used foreign exchange controls such as restriction on currency exchanges as a form of indirect intervention. So sometimes government can also intervene by putting a restriction that you cannot exchange the currency. अब अगर आपको allowed ही नहीं है या फिर कोई restriction है उस चीज के ऊपर कि आप करेंसी को नहीं exchange कर देंगे, तो what is the point? Obviously आपकी currencies exchange ही नहीं होंगी, तो उस way में governments basically trying to control the criteria. Maybe they are trying to control, बहुत ज्यादा excess हो गई है किसी करेंसी की, तो अभी आपने ban लगा दिया या rule बना दिया कि इसके बाद further currency exchange नहीं होगा या restrictions लगा दी उसके ऊपर. So that can be another tool by which government can intervene into foreign exchange market, and then they can control the money supply of any foreign currency. Exchange rate target zones. So target zones have been suggested for reducing exchange rate volatility. When we are saying कि target बना लें आप exchange rate का, और exchange rate are defined in a way कि they are suggested for reducing the exchange rate volatility. So by using this tool, basically the objective is to reduce exchange rate volatility. For example, an initial exchange rate will be established with specific boundaries. कि एक exchange rate आप define कर लें कि ये exchange rate होगा. टारगेट किया है कि उसकी बाउंड्रीज आप सजेस्ट कर लें कि ये उसकी बाउंड्रीज होंगी और ये उसकी फ्लक्चुएशन इस रेंज में या इस टारगेट में रह सकती है. Ideally, the rates will be able to adjust to economic factors without causing fear in financial markets. तो आइडियल सिचुएशन ये होगी कि जो आपका एक्सचेंज रेट है, जब आपने बाउंड्स डिफाइन कर दिए, टारगेट्स डिफाइन कर दिए, सो इट विल रिमेन इन दोज बाउंड्स बाय कंसिडरिंग द इकोनॉमिक फैक्टर्स. तो आपको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हैं, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इकोनॉमिक फैक्टर्स का इंपैक्ट आता है ऑन द वैल्यू ऑफ मनी. तो जब आप टारगेट जोन्स डिफाइन कर देते हैं, एक्सचेंज रेट के लिए बाउंड्रीज डिफाइन कर देते हैं, एंड देन आइडियल सिचुएशन ये होगी कि विद इन दोज बाउंड्रीज जो आपका एक्सचेंज रेट है वो इकोनॉमिक कंडीशंस को फोकस करते हुए चेंज हो. एंड वाइड स्विंग्स इन इंटरनेशनल ट्रेड. तो जितना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जितना इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली आपका जो एक्सचेंज रेट मूवमेंट है वो आए. The actual result may be a system no different from which it exists today. So let's move on to the previous lecture. If I ask you कि आप लोग मुझे बताएं कि जो final point है कि the actual result may be a system no different from that which exists today. तो वो कौन सा सिस्टम है एक्सचेंज रेट का जो अभी एग्जिस्टेंट है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिफाइन किया कि वो कौन सा एक्सचेंज रेट सिस्टम है जो कि प्रेफरेबल है इन मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज, कि जिसमें आप बेसिकली विच इज क्वाइट सिमिलर टू दिस एग्जांपल कि आप बाउंड्रीज डिफाइन कर देते हैं जिसके बीच में फ्लक्चुएट कर सकता है. Yes, that's correct. So that is managed float. So in this case, if you read the same example कि एक initial exchange rate define कर दिया जाता है, establish कर दिया जाता है with specific boundaries, ideally the rates will be able to adjust according to the economic factors, causing no fear that in financial markets and wide swings in international trade. तो चाहे कितने ही swings आए इंटरनेशनल ट्रेड में या जितनी ही फ्लक्चुएशंस आए इन फाइनेंशियल मार्केट्स, आपको फियर नहीं है क्योंकि आपने टारगेट जोन डिफाइन कर लिया, बाउंड्रीज डिफाइन कर ली. एंड दिस इज क्वाइट सिमिलर टू द सिस्टम विच वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर, दैट इज मैनेज्ड फ्लोट. So intervention as a policy tool
like tax laws and the money supply, the exchange rate is a tool that a government can use to achieve the desired economic objective. So जिस तरह हमारे बाकी tax laws हैं या money supply है, government can use exchange rate as a tool कि जिसके through government जो है वो economic objectives को achieve कर सकते हैं. A weak home currency can stimulate foreign demand for the products and hence reduce the unemployment at home. अगर आपकी करेंसी जो फॉर एग्जांपल आपकी लोकल करेंसी है वो वीक है एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज जो कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, इन दैट केस ऑब्वियसली आपके कंट्री में एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगे क्योंकि आपके पास उस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी. एनीवन हु इज सिटिंग आउटसाइड विल कंसिडर दैट कंट्री जहां की वैल्यू करेंसी की वैल्यू ज्यादा हाई नहीं है, बिकॉज इन दैट केस जो आपकी वीक करेंसी है वो आपकी बेसिकली एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करती है. So weak currency में आपकी exports cheap हो जाते हैं, in that case it is favorable for the government. So ये एक tool भी हो सकता है foreign exchange को control use करके कि आप basically अपनी exports को increase करना चाह रहे हैं. However, it can increase higher inflations also. Now on the other hand, a strong currency may cure high inflation. जिस तरह हमने कहा weak currency में inflation high हो जाती है, अगर आप currency को strengthen करेंगे तो inflation तो low हो जाएगी. बिकॉज आपकी करेंसी स्ट्रेंथन हो रही है तो इन्फ्लेशन डिक्लाइन कर रही है. सिंस इट इंटेंसिफाइज फॉरेन कॉम्पिटिशन एंड फोर्सेस डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स टू रिफ्रेन फ्रॉम इंक्रीजिंग प्राइसेस, हाउएवर इट मे आल्सो लीड टू हायर अनएम्प्लॉयमेंट. तो जब आपने बात की कि करेंसी डिक्लाइन कर रही है, इन दैट केस इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाएगी. अगर आप बात करें कि करेंसी बहुत ज्यादा इनहैंस हो रही है, अप्रिशिएट हो रही है, इन दैट केस इन्फ्लेशन तो क्योर हो जाएगा, इन्फ्लेशन आप कंट्रोल कर लेंगे. लेकिन ऑन दी अदर हैंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएंगी. So let's review today's lecture. First of all, we have discussed the government intervention in foreign exchange market, where we have discussed that government can intervene in foreign exchange market, but it is done through the central bank of any country. Fed, which is the central bank of America, is the main example which we have discussed, that how it can intervene to control basically the different types of objectives of the government in terms of foreign exchange market. First of all, reliance on reserves is quite important, that each and every country must have sufficient reserves for foreign currency so that they can enhance or they can depreciate the value of any currency. In terms of China, we have discussed that China has got sufficient reserves for its foreign currency, and in that case Chinese economy is in a way that if they want to regulate the currencies, if they want to depreciate or appreciate the currency's value, so they do have the effective or they do have the sufficient reserves for foreign currency. So reliance on reserves means that country need to rely on reserves if they have to regulate the foreign exchange market, because अगर आपने किसी करेंसी की वैल्यू enhance करनी है तो उसकी डिमांड इंक्रीज करनी है मार्केट में, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में. अगर आपने किसी करेंसी की वैल्यू डिप्रिशिएट करनी है इन टर्म्स ऑफ सेंट्रल बैंक वी आर टॉकिंग, तो उसकी सप्लाई इंक्रीज करनी है इनटू द मार्केट. तो अगर आपके सेंट्रल बैंक के पास फॉरेन रिजर्व्स ही नहीं है, सो व्हाट विल बी द रिजल्ट? ऑब्वियसली आप करेंसी की वैल्यू को रेगुलेट नहीं कर सकते, इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं ला सकते, एंड देयर आर पॉसिबिलिटी दैट एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटीज विल बी देयर. So government intervention is important in a way that central bank of any country must maintain the reserves, because they are relying on the reserves. अगर उन्होंने करेंसी को अप्रिशिएट करना है तो करेंसी की डिमांड इंक्रीज करनी है, अगर करेंसी को या फॉरेन करेंसी को डिप्रिशिएट करना है या करेंसी को डिप्रिशिएट करना है तो उसकी सप्लाई इंक्रीज करनी है. That we have discussed in terms of the graph, that you have seen कि अगर आपने डिमांड इंक्रीज की तो करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो गई. ऑन दी अदर ग्राफ वी हैव सीन कि जहां पे आपने करेंसी की सप्लाई इंक्रीज की तो करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो गई. That can be possible only if the central bank of any country is having sufficient reserves of the foreign currencies. क्योंकि in terms of dollar we have discussed कि अगर currency of if dollar has been strengthened a lot, तो आपने क्या करना है, उसको थोड़ा डेप्रिशिएट करने के लिए आपने डॉलर्स की सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बढ़ा देनी है. डॉलर्स को ले जाके आपने सेल करना है और अदर फॉरेन करेंसीज को परचेज करना है. इन दैट केस डॉलर की सप्लाई मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी, और जब सप्लाई इंक्रीज होगी इन दैट केस डॉलर की वैल्यू डिक्लाइन करेगी.
While on the other hand, if you want to appreciate the value of the dollar, कि डॉलर जो है उसकी वैल्यू डिक्लाइन हुई है, in that case what will you do कि आप डॉलर की डिमांड इंक्रीज करेंगे इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और आप फॉरेन करेंसीज को रिप्लेस करेंगे विथ डॉलर्स, तो जितना आप उसकी डिमांड इंक्रीज करेंगे उतनी डॉलर की वैल्यू इनहैंस हो जाएगी. So that is the criteria which you have to focus. But all for each and everything, you must have, or your country must have, reliance on reserves. That means the country is relying on the reserves. You must have sufficient reserves in with your central banks. Then we discussed the direct intervention, which can be through the central banks, and there are two criteria. One is called sterilized banking, sterilized criteria, and the other one is non-sterilized intervention. Now, what is sterilized intervention? In which basically the central bank is straight away using the money supply tools and jumping into the market by using those tools and trying to regulate the exchange rate market. However, non-sterilized intervention is something where state bank or the central bank is jumping into foreign exchange market without using any money supply instrument. For example, treasury bills की हमने बात की, तो without jumping, without using anything, without picking anything from money supply instrument, state bank जो है या central bank जो है वो straight away आपके foreign exchange में market में intervene कर रहा है और trying to regulate it by using the maybe demand or supply, जिस तरह भी हमने बात की कि करेंसी को रेगुलेट कर सकते हैं. तो अगर तो डायरेक्टली कर रहा है विदाउट यूजिंग एनी मनी सप्लाई इंस्ट्रूमेंट, सो दैट मीन्स कि ये नॉन स्टेरिलाइज्ड इंटरवेंशन है. However, अगर स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक इंटरवीन कर रहा है इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बाय यूजिंग मनी सप्लाई इंस्ट्रूमेंट, सो दैट इज कॉल्ड योर नॉन स्टेरिलाइज्ड, दैट इज कॉल्ड योर स्टेरिलाइज्ड इंटरवेंशन. Now, we have also discussed another criteria which is called your indirect intervention. Now, what happens in your indirect intervention? That in your indirect intervention, basically state bank or central bank is using the other economic factors, for example, by regulating the inflation rate or by regulating the interest rate, they are trying to basically control the exchange rate pressure on the economy or exchange rate fluctuations. So wherever we are discussing the economic conditions or wherever we are discussing the government intervention, so you cannot deny the fact that the indirect factors, which are the economic factors, they are equally important as compared to the direct intervention, because we have discussed that interest rate or your inflation rate, income criteria of any country, government controls, where we have discussed कि जी government controls क्या हैं, कि जब government इंटरवीन करती है इन एनी इंटरनेशनल बिजनेस मार्केट और इन एनी इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट, जब गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती है फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट्स को या इंपोर्ट्स को, तो आपकी करेंसी फॉर एग्जांपल जब हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट इंटरवेंशन की, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है मनी सप्लाई के थ्रू, इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू या नॉन मनी सप्लाई इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, दे आर ट्राइंग टू रेगुलेट द फॉरेन करेंसी इन अ वे, बिकॉज आप फोकस कर रहे हैं अपनी इंटरनेशनल बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को. तो या तो आपके गवर्नमेंट जो है वो इनडायरेक्ट टूल्स यूज कर ले या फिर डायरेक्ट टूल्स यूज कर ले. तो आपकी डायरेक्ट इंटरवेंशन जो होती है वो स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक्स के थ्रू होती है, जिसमें बेसिकली सेंट्रल बैंक डायरेक्टली जंप करता है इनटू योर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और वो स्ट्रेट अवे रेगुलेट करता है फॉरेन एक्सचेंज को या फिर वैल्यूज को, करेंसीज की वैल्यूज को. अब अगर आपका स्टेट बैंक यूज कर रहा है मॉनेटरी सप्लाई के या मनी सप्लाई के टूल्स को, सो दैट मीन्स आपकी स्टेरिलाइज्ड इंटरवेंशन हो रही है. ऑन दी अदर हैंड अगर वो उन टूल्स को नहीं यूज कर रहे तो नॉन स्टेरिलाइज्ड है. ये तो आपके डायरेक्ट इफेक्ट्स आ गए. However, on the other hand, if you focus on the central bank, if they are using, for example, आपके हमें पता है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने से क्या होगा. अगर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा, सो ऑब्वियसली इन द इकोनॉमी पीपल वुड बी प्रेफरिंग मोर फॉर द सेविंग, बिकॉज पीपल वुड थिंक कि अब तो क्योंकि डिपॉजिट्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट हायर मिल रहा है, सो व्हाई नॉट टू गो फॉर द इन्वेस्टमेंट्स इन अ वे दैट दे शुड सेव मोर एंड दे शुड इन्वेस्ट इनटू बैंक डिपॉजिट्स. Because central bank has got a new policy by which जो आपके डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट्स हैं, they have been increased. People would be loving more to save, and in that case जैसे ही आप सेविंग्स इंक्रीज करेंगे आपकी इकोनॉमी में मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी.
सो जितनी मनी सप्लाई कंट्रोल होगी उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट इम्पैक्ट आ जाएगा, या इनडायरेक्ट जिसको हम बोल रहे हैं इनडायरेक्ट इंटरवेंशन के थ्रू डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा ओवर मनी सप्लाई. दैट इज द एजेंडा ऑफ योर गवर्नमेंट. So basically when you are talking about the government intervention, so government either can directly intervene into foreign exchange market by using central banks through foreign exchange control, or on the other hand the government can intervene into foreign exchange market by using the indirect intervention tools that are your inflation, interest rate, income level and government controls. Expectations are also important in this case, where we have discussed that expectations can have a major impact over foreign exchange market. We have also discussed the target zones, where we have said that there is a possibility that country can define the target zones, where they would basically define कि okay fine, this is the exchange rate and these are the target zone, and the currency has to move within these bounds, and it would be likely or it would be preferred that the currency should move or exchange rate should move within these boundaries by focusing on the economic factors. If this is the case, so that is something which is the agenda of target zone. But do you think it is similar to any other exchange rate system, where you are defining the boundaries and you are saying let the exchange rate move within these boundaries, and it would be preferable if they move along with the economic factors? So yes, we have discussed managed float system, where basically government intervention is there and they are trying to basically define the boundaries. Okay fine, we will let the exchange rate move within these boundaries, or along with that the government is intervening कि जो exchange rate है वो बहुत ज़्यादा extreme positions पे ना जाए, ना तो बहुत ज़्यादा extreme enhancement की तरफ जाए, ना ही बहुत ज़्यादा extreme devaluation की तरफ जाए. So in that case basically what you are trying to do is कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज इंपॉर्टेंट इन दैट केस. जो हमने बात की कि टारगेट जोन्स में भी इसी तरह बाउंड्रीज डिफाइन कर दी जाती हैं, इन विच एक्सचेंज रेट बाउंड्रीज आर डिफाइंड, एंड इट इज प्रेफरेबल दैट एक्सचेंज रेट शुड मूव along with the economic factors of the economy. So we have discussed the government intervention, which is quite important in terms of exchange rate market, because exchange rate market is not something which is doing its business or focusing the international business on its own, but government intervention is required. Why? Because it is the agenda of each and every government in their policies कि उन्होंने अपनी करेंसी को बहुत ज़्यादा वैल्यू डीवैल्यू भी नहीं होने देना और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी नहीं होने देना, because in both cases the exports will be affected. सो अगर तो आपकी डिप्रिसिएशन करेंसी में इतनी ज्यादा हो गई है कि बहुत ही ज्यादा डीवैल्यू की तरफ चली गई है करेंसी, ऑब्वियसली देयर आर सम डिफरेंट एजेंडाज. जिस तरह हमने बात की कि आपकी एक्वाडोर की करेंसी जो थी वो 97% डिक्लाइन कर गई थी टुवर्ड्स डॉलर. उस केस में तो ऑब्वियसली उस गवर्नमेंट के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, दे आर गोइंग टुवर्ड्स द डॉलराइजेशन. हाउएवर इन जनरल जो जनरल कंट्रीज हैं उनमें क्या क्राइटेरिया है कि डीवैल्यूएशन जितनी प्रेफरेबल इसलिए है कि आपकी बेसिकली एक्सपोर्ट्स चीप हो जाती और आप एक्सपोर्ट्स को एनहांस कर देते हैं. बट अगेन गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि गवर्नमेंट्स भी एक खास लिमिट तक एक्सपोर्ट्स को एनहांस करेंगी कंसिडरिंग देयर ओन वैल्यू, कि उसको एक लिमिट तक आप डीवैल्यू कर सकते हैं. सेम गोज फॉर द एनहांसमेंट या फिर अप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी, की अगर बहुत ज्यादा डीवैल्यूएशन हो रही है, यू हैव टू ब्रिंग देम बैक टू अ पॉइंट कि जहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे करेंसी को लाना है. देन डिमांड और सप्लाई फोर्सेस गवर्नमेंट कैन अप्लाई बाय यूजिंग द सेंट्रल बैंक क्राइटेरिया, कि सेंट्रल बैंक डिफाइन कर दे कि उन्होंने किस तरह से डिमांड इंक्रीज करनी है किसी पर्टिकुलर करेंसी की, या किस तरह से सप्लाई इंक्रीज करनी है. So I hope these criteria are quite clear to you. In next class, students, we are going to cover the arbitrage criteria, where we will see कि arbitrage in any market, which is quite important concepts in terms of finance, कि international finance में arbitrage opportunities अगर occur करती हैं, so उससे basically arbitragers जो हैं वो किस तरह से benefits ले सकते हैं.